बुलेटिन में सबसे पहले बात यादगार लम्हे की, तारीखी लम्हे की। गजा मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए तारीखी लम्हा। अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने अब मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा होते ही कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। सदर ट्रंप ने कहा गजा मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। यहाँ तक पहुँचने में 3000 साल लगे। अमीर ममालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। मुआहदे में गजा की तामीर नौ, सेहूनी फौज का इनखला, इमदाद की फरहमी और हमास को गैर मुसल्लह करने समेत अहम निकात शामिल हैं। मिस्र के शहर शर्म शेख में तारीखी तकरीब। गजा अमन मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मुआहदे पर दस्तखत किए। मिस्र, तुर्की और कतर ने भी तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होगा। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उर्दून के शाह अब्दुल्ला, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। अब मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन आएगा। शर्म अल शेख में मुआहदे के बाद सदर ट्रंप का खिताब। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा अब मुआहदे की वजह से गजा में खून रेजी रुकी, गिरगमालियों की वापसी हो चुकी, गजा में इमदादी सामान पहुंच रहा है। सब कहते थे ये मुमकिन नहीं, लेकिन ये हो गया है। Everybody said it was impossible. At long last, we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression: peace in the Middle East. And we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. I want to congratulate everybody. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. A new and beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest part. I think we've done a lot of the hardest part because the rest comes together. We all know how to rebuild, and we know how to build better than anybody in the world. They're elated at the arrival of the hostages and excited to begin this new chapter for the entire region, and it's going to be that, and they are going to be great partners, and I hope everybody's going to join the Abraham Accord. I like to say the Avraham. I love Avraham, but somehow it doesn't sound as good when I say it as it does when some of my other friends say it who are from the region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। इन्हीं की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप को एक बार फिर अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कहा वो इस इनाम के सबसे मौजू और शानदार उम्मीदवार हैं। तारीख आपका नाम सुनहरी हरूफ में लिखेगी। खुदा आपको सलामत रखे और लंबी उम्र दे ताकि आप आइंदा भी इसी तरह खिदमत करते रहें। Today is one of the greatest day in contemporary history. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who has relentlessly and untiringly worked day in and day out to make this world a place to live with peace and prosperity. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, and today achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your visionary leadership. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. History will remember in golden words. God bless you. God give you long life to serve like this for all time to come. गजा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़ुरबतें और गर्म जोशियाँ। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल को भी ना भूले, उन्हें फेवरेट करार दिया।
History will remember in golden words. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. गजा में अमन मुआहदे की तकरीब, ट्रंप और शहबाज मजीद करीब। President Trump, who is genuinely a man of peace. शहबाज शरीफ ने मैन ऑफ पीस करार दिया तो सदर ट्रंप ने भी दिल का हाल कह डाला। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very nice. They are, and they're two great, I tell you, leaders, great leaders, as far as I'm concerned. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. दुनिया भर की नजरें जिस तकरीब पर थीं, वहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल को फेवरेट करार देते रहे। My favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the prime minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? दस्तखत की तकरीब से पहले भी ट्रंप कई आलमी रहनुमाओं से मिले, मगर शहबाज शरीफ आए तो अमरीकी सदर ने बाहें खोलकर इस्तकबाल किया। गरम जोश मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला। सदर ट्रंप और वजीर आजम की कुर्बतें पता देती हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात अपने बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गजा अमन सरबराही इजलास में सदर डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं सदर ट्रंप की मिसाली बसीरत अफरोज क़यादत को सलाम पेश करना चाहता हूँ। इस वक्त दुनिया को आप जैसे इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गजा में जंग बंदी मुआहदे के बाद अमन की जानिब पहला कदम। इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का तारीख साज लम्हा। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमालियों को छोड़ दिया। 4 यरगमालियों की लाशें भी इसराइल पहुंचा दी गईं। शनाख्त के लिए फ्रांसिक सेंटर मुंतकिल। इसराइल की जानिब से भी 1986 कैदियों को रिहा कर दिया गया। उम्र कैद काटने वाले 250 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को भी रिहाई मिल गई। लोग अपने प्यारों से मिले तो जज्बाती मनाजर देखने में आए। खैबर पख्तूनख्वा में नया वज़ीर आला मुंतखब। PTI के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे ऐवान बन गए। अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी अमल का बॉयकॉट और ऐवान से वॉकआउट किया। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब हासिल करदा वोटों की तादाद है 90। इस्तीफे की मंजूरी जरूरी थी या नहीं? आईनी बहस के दौरान ही खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली। सुहेल आफरीदी नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए, 90 वोट लिए। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने कहा वो अब भी अली अमीन गंडापुर को ही वजीर आला समझते हैं। आप अगर समझे ना समझे, मैं अब तो ही सीम ऑफ दिस प्रोविंस। अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया। इंतखाबी अमल का बाइकआउट और असेंबली से वॉकआउट किया। अली अमीन गंडापुर और दीगर अरकान असेंबली ने सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। गले लगाने के साथ रिवायती पश्तून पगड़ी भी पहनाई। वजीर आला का इंतखाब तो हो गया, अब देखना होगा सुहेल आफरीदी से हल्फ कौन लेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फान मूसा जई के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर।